Hello friends, welcome to my channel Chaubeji Educator. So friends, in this particular video we are going to learn about the maps, their types, okay, and in the last I will tell you how can we find out the 4-figure grid reference and 6-figure grid reference with the help of eastings and northings. So friends, let's start from the definition of map. So what is the definition of map? A map is defined as the representation of the earth's surface or a part of it showing natural or man-made features drawn to drawn to scale on a flat surface. So actually what we are representing different man-made as well as natural features on a map. Okay, so let me explain in Hindi. So actually map क्या होता है कि एक ये अर्थ सरफेस का एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम अर्थ के साइज का जो मैप है उतना बड़ा साइज का मैप नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल यूज़ करके अर्थ के साइज को छोटा करते हैं, एक स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अर्थ के साइज को छोटा करके एक जो हमारा फ्लैट पेपर होता है उसके ऊपर मैप को हम ड्रॉ करते हैं. ओके, सो जो मैप्स हैं, ओके, इट इज़ ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप. ओके, means it is divided into two types. One is on the basis of content and purpose, and other is on the basis of scale. Okay, so first on the basis of content and purpose, it is divided into three types: physical map, political map, and thematic maps. And on the purpose of scale, again it is divided into two parts: large scale maps and small scale maps. Large scale maps further subdivided into cadastral maps and topographical maps, and small scale maps are divided further into atlas and wall maps. Now let's take examples of all these type of maps. So example of physical map, for example, if you are representing or if you are drawing a physical map of India, okay, so this is a type of small scale map. Okay, political map of India, there's an example of political map. Thematic map means these kind of maps are based on a particular theme. For example, if you are drawing a map of temperature distribution or pressure distribution in India or rainfall pattern, okay, so these type of maps are known as thematic maps. Okay, then large scale maps, cadastral as well as topographical maps. So cadastral maps, they are used by the you can say that revenue inspectors, okay, for the collection of revenues, for maintaining the records of revenue, or some different purposes also. Now you people will study topographical maps in detail. Okay, so in the series of videos I will explain you about the topographical maps in detail. Okay, and obviously atlas, you all have seen that, and wall maps means a map which is you can say that कि जिसको हम वॉल के ऊपर जनरली माउंट करते हैं, उसको लटका के रखते हैं, that is known as wall maps. Okay, so इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इन जनरल जो टोपोशीट हमारे पास, जो प्रीवियसली हम टोपोशीट्स यूज करते थे उनकी नंबरिंग क्या थी, और अब जो हम टोपोशीट्स यूज कर रहे हैं उनकी नंबरिंग क्या है, और कैसे उन नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ग्रिड रेफरेंसेस के बारे में. ग्रिड रेफरेंसेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टोपोशीट नंबरिंग के बारे में, और टोपोशीट नंबरिंग के बाद इन द लास्ट आई विल टेल यू अबाउट द 4-figured grid reference and 6-figured grid reference. Okay, so friends, before studying about the 4-figured grid reference and 6-figured grid reference, first of all let's study about the grid reference. Okay, what is grid reference? Okay, so in the grid reference, first of all, what is a grid? It is a set of lines, okay, used to find the exact location of places on a map. Means set of lines means in this particular grid we are using vertical as well as horizontal lines, okay, for finding the exact location of a place on a map. Okay, so you can see here there are some vertical lines, there are some horizontal lines. Okay, so the points at which the vertical and horizontal lines of the grid cross are called coordinates. So this particular part is known as coordinate, and this whole is known as the grid square. Okay, grid square. So this is very helpful for you all. Okay, means this particular grid square, because whenever you means we are going to find out the 4-figured grid reference or 6-figured grid reference, this particular grid square is important for us. Okay, so let me explain in Hindi what is grid. ये क्या है, set of lines है that is used to find exact location. क्योंकि देखिए जैसे भी अगर हम कोई भी मैप के ऊपर, इवन गूगल अर्थ जो हमारा गूगल मैप है उसके ऊपर भी वो भी क्या यूज़ करता है, वो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को यूज़ करता है, यानी कि
सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको यूज़ करता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारे पास कुछ यहाँ पे देखिए तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और जहाँ पे ये कोइंसाइड करती हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट, और वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स जो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनके हमने डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, दिस वर्टिकल लाइंस आर नोन एज नॉर्थिंग्स, ओके, sorry, these vertical lines are not sorry these vertical lines they are known as eastings, okay। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि the vertical lines whose values are increasing eastward, okay। अगर हम कंसिडर करें तो टॉप इसका नॉर्थ होगा, बॉटम साउथ, राइट साइड जो होगा वो इसका ईस्ट होगा और वेस्ट लेफ्ट साइड में। सो द वर्टिकल लाइंस, ओके, whose values are increasing eastwards, जिसकी वैल्यूज ईस्टवर्ड इंक्रीज कर रही हैं उसको हम ईस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे 23 है, 24, 25, 26, 27 इसके अकॉर्डिंग होगा। एंड दोज हॉरिजॉन्टल लाइंस whose values are increasing northward, ओके। अब ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो देखिए यहाँ 17, 18, 19, 20, यानी कि जिसकी वैल्यूज बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेंगी दे आर नॉर्थिंग्स, उनको हम नॉर्थिंग्स, और सिंपली याद रखेंगे जो नॉर्थ की तरफ जिसकी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं उसको हम नॉर्थिंग्स बोलते हैं, और जिसकी वैल्यूज ईस्ट की तरफ इंक्रीज करेंगी, मींस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगी, उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थिंग्स। जिनकी वैल्यूज ईस्टवर्ड इंक्रीज करेगी वो ईस्टिंग्स, जिनकी वैल्यूज नॉर्थवर्ड इंक्रीज करेगी यानी कि अपर टॉप की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थिंग्स, ओके। अब एक इसमें एक स्पेशल हमारे पास एक कन्वेंशन है कि हमारे लिए एक जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, कोई भी ग्रिड स्क्वायर लेंगे उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस साउथ वेस्ट कॉर्नर से ही हम जो भी 4 फिगर या फिर 6 फिगर फाइंड आउट करेंगे। ये कॉर्नर हर एक ग्रिड स्क्वायर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा, जैसे अगर इधर ग्रिड लेंगे तो इसका साउथ वेस्ट ये होगा, ये लेंगे तो इसका साउथ वेस्ट ये होगा, ये लेंगे तो इसका साउथ वेस्ट ये, मतलब जो भी हम ग्रिड स्क्वायर लेंगे उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम ईस्टिंग क्यों लिखते हैं, सबसे पहले हम ईस्टिंग लिखेंगे और उसके बाद नॉर्थिंग्स लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको नॉर्थिंग्स जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना है और अपने आप जो आपके 4 मार्क्स जो हैं बोर्ड के अंदर पूरा कंफर्म करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 4 फिगर एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो देखने वाले हैं कि कैसे हम जो टोपोशीट की नंबरिंग है, टोपोशीट्स के नंबर कैसे करेंगे, हम उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टडी अबाउट द नेशनल ग्रिड रेफरेंस। सो फ्रेंड्स इन दिस particular topic we are going to learn about the means how can we are going to number, okay, the topo sheet, okay. So earlier we were using some old system number, okay, 45D/7, 45D/10, and now we are using new system that is G43S7, G43S10। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर्स ये कहाँ से आए हैं, मतलब कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया हमने। सो जब से मतलब 2005 से पहले हम एक नॉर्मल टोपोग्राफिकल मैप्स जो चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो और एजुकेशनल पर्पस, उसमें हम लोग जनरली सेम मैप को यूज़ करते थे। बट अभी क्या है, 2005 के बाद एक OSM मीन्स ओपन सीरीज मैप को इंट्रोड्यूस किया गया एज पर द नेशनल मैप पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके। और ये जो पर्टिकुलरली मैप है, ये इसकी जो नंबरिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज IMW। तो पहले जो हम फ्रेंड्स जो मैप का डिवीजन करते थे, ठीक है, वो पहले फ्रेंड्स जो मैप का डिवीजन था वो हम करते थे 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री में, ठीक है। और अभी जो है मैप का डिवीजन कर रहे हैं वो 6 डिग्री इंटू 4 डिग्री, यानी कि पहले हम 16 बॉक्सेस बनाते थे और अभी हम 24 बॉक्सेस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कहाँ से आए और ये जो नंबर्स 43, 44, इवन इधर 42, ये सब नंबर्स कहाँ से आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम नीचे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेटर है, और क्योंकि ये जो 6 डिग्री का मतलब है कि 6 डिग्री हम लॉन्जिट्यूड का गैप लेंगे और 4 डिग्री लैटिट्यूड का गैप लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इक्वेटर को हमने 0 कंसिडर करना है। सो 0 से 4 डिग्री को हम A देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0 to 4 डिग्री A, देन 4 to 8 डिग्री B, देन 8 to 12 डिग्री C। ऐसे करते हुए हमारा 0 to 4, देन 4 to 8, 8 to 12, 12 to, ऐसे करते हुए हम जाएंगे
ठीक है। तो हमने इन जनरल सिर्फ इसी एरिया को क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो आईसीएससी में हमको जो टोपो शीट्स गिवन है या जो टोपो शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं वो पर्टिकुलरली इसी जोन की दी जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने इसी एरिया को ही बाई मतलब इसको ही डिवाइड किया है, अदरवाइज हम किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये डी ई एफ एंड देन जी, तो जी को हमने डिवाइड करना है। फ्रेंड्स अब ये देखते हैं ये 42, 43, 44 कहाँ से आया। हमको पता है कि टोटल हमारे पास 360 जो है वो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं 360 को, तो नंबर कितना आएगा 60, ठीक है। टोटल हमारा नंबर आएगा 60। तो हम क्या करेंगे, जो 180 डिग्री हमारा जो वेस्ट लाइन है वहाँ से 6 डिग्री के गैप पे हम नंबरिंग करेंगे। मीन्स 180 डिग्री जो हमारा वेस्ट लाइन होगा उसको हम वहाँ से सपोज उसको अगर हम 0 कंसिडर करते हैं तो 0 to 6 डिग्री को हम नंबर 1 देंगे, ऐसे 6 to 12 को 2, ऐसे करते करते जब हम आएंगे ग्रीनविच पे तो वहाँ पे नंबर आएगा 30, ओके 30, 180 डिवाइडेड बाई 6 30। और ऐसे हम फर्दर 6 डिग्री के डिवीजन में बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो जब हम इंडिया तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो ये 72 डिग्री और जो हमारा यहाँ पे सॉरी ये 78 होगा और ये 84 होगा, ठीक है। तो 72 और 78 के बीच में हमारा नंबर 43 आता है, 78 to 84 के बीच में हमारा नंबर आएगा 44, और इससे पहले देखेंगे 66 to 72 तो 42 नंबर आता है। तो इस टाइप से ये नंबरिंग है। मतलब ये जो पर्टिकुलरली हमारा जो बॉक्स है ये G43 है, G43। अब इस बॉक्स को क्या करेंगे, देखिए 6 into 4 है, मीन्स 24 बॉक्सेस ईच एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, ओके 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड 1 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये सारे बॉक्सेस 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री में। अब क्योंकि हमने जो डिवाइड करना है वो एस को डिवाइड करना है, एस, तो इसलिए हम एस इसमें से किसी को भी आप फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। ये 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री है, इसको हमने टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये सारे के सारे क्या स्क्वायर ग्रिड है। मतलब सपोज कि ये अगर 72 डिग्री है तो ये 73 होगा। अगर ये सपोज हमारे पास 12 डिग्री है तो ये सपोज 16 डिग्री होगा, मतलब 4 डिग्री का, मतलब ये 12, 13, 14, 15, 16, 72, 73, 74, 75, 70, सॉरी yes, हाँ, it is 72, then it is 78. Just a minute, let me clarify you. It is 73. This is 1 degree into 1 degree. So here if it is 12 degree, it is here 13 degree. मतलब ये 1 डिग्री के गैप पे है, ठीक है। ये 1 डिग्री के गैप पे हमने क्या किया है, जो S है उसको पूरे 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक। हमने जिस भी पार्ट को स्टडी करना है, सपोज 1 को करना है। अब देखिए इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे बॉक्स क्या था, G, अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे G, द नंबर इज 43। सो G43 कौन से बॉक्स को हमने डिवाइड किया था, S, एंड देन इसमें से हमने कौन सा बॉक्स लिया, सपोज 7, और इसमें से अगर 10 लेंगे तो 10, 15 लेंगे तो 15, 16 लेंगे तो 16, ओके। तो इस टाइप से क्या हो गया हमारे पास कि हम कैसे मतलब जो है टोपो शीट्स का नंबरिंग, जो ओल्ड सिस्टम है वो 45D/7 फॉर G43S7 एंड 45D/10 फॉर G43S10। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो ये हमने डिविजन्स किए हैं ये 6 into 4 डिग्री में किए हैं, और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं ये सब 1 डिग्री into 1 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने डिवाइड किया है एस को डिवाइड किया है, तो ये 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री और यहाँ से वहाँ तक 1 डिग्री, फिर ये सब जो है 1 डिग्री अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 15 मिनट्स आएगा, 15 मिनट्स, यानी कि एक एक जो बॉक्सेज है ये 15 मिनट्स into 15 मिनट्स है, ठीक है। अब क्योंकि हम एस को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो टोपो शीट प्रोवाइड की जाती है वो यही 2 नंबर्स की जाती है, यानी कि इन्हीं 2 एरियाज की हमको टोपो शीट्स प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज होंगी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स नाउ द टाइम फॉर द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस एज वेल एज 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपको बताते हैं कि 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। So friends, let's study about the 4-figured grid reference and 6-figured grid reference. Okay, so this is the very important topic. Means you consider very important topic for you all, because you all can expect 4-figured grid reference and 6-figured grid reference in your examination. Okay, अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाइज होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, और अगर एनुअल होता है तो एनुअल में डेफिनेटली इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, जो टोपो शीट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो there are 2 types of grid references. One is the 4-figured grid reference and second is the 6-figured grid reference. हमारे पास 2 टाइप के grid reference है। जो 4-figured grid reference है जनरली वो किस टाइप के फीचर्स के लिए यूज होता है,
फॉर लेक्स, meanders और फॉर सम फिजिकल फीचर्स, ओके, कुछ फिजिकल फीचर्स उनके लिए हम लोग मतलब इस टाइप के फीचर्स जिनका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट हमको नहीं करना है, उस टाइप के फीचर्स के लिए हम लोग 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। और जिनका हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल टेंपल, पुलिस स्टेशन, कॉजवे, पोस्ट ऑफिस, उसके लिए हम लोग 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस यूज करेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो फ्रेंड्स पहले एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर नोन एज ईस्टिंग्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दे आर नोन एज नॉर्थिंग्स। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल ए। जो ए है इसका हमको क्या निकालना है, 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बहुत ही ईजी है। हमको क्या देखना है कि किस पर्टिकुलर स्क्वायर ग्रिड यानी स्क्वायर बॉक्स के अंदर है और उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा, मीन्स दिस कॉर्नर, जैसे यहाँ पे कोई फीचर होगा साउथ वेस्ट कॉर्नर ये होगा, इस बॉक्स में होगा साउथ वेस्ट कॉर्नर ये है, इसमें होगा तो साउथ वेस्ट कॉर्नर ये है, तो इस बॉक्स के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर ये है। इसका हम सबसे पहले देखेंगे ईस्टिंग क्या है और देन देखेंगे नॉर्थिंग क्या है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये इसको टच कर रही है और हमेशा याद रखना है स्टार्टिंग को ही लिखना है क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर लिखना है। सो इट इज 2, 3, ठीक है। और जो फर्स्ट 2 जो हमारे पास नंबर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग ईस्टिंग्स एंड लास्ट 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग नॉर्थिंग्स, ठीक है। देन देखेंगे यहाँ पे अब नॉर्थिंग का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 1, 7, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 7। सो 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर ए इज 2, 3, 1, 7। नाउ let's study about how can we find out the 6 figured grid reference of this same particular A, इस A का। अब उसके लिए थोड़ा ध्यान देना है। हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एज वेल एज जो वर्टिकल लाइन है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि देखिए ये एक जो हमारे पास बॉक्स स्क्वायर जो ये एक स्क्वायर ग्रिड है और इसकी डायमेंशंस क्या होती है, इसकी साइड होती है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली डिवीजन का मतलब क्या है कि 2 मिलीमीटर से हम एक गैप ले लेंगे, टोटल 10 गैप्स लेंगे। फिर देखेंगे 10 गैप्स लेने के बाद कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास सिंबल या जो फीचर जो पर्टिकुलर टेंपल है या कुछ भी है वो नीचे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे और किस नंबर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। बट इससे पहले हम लोगों को क्या लिखना है 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो इसका पहले 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस क्या होगा 2, 3, लीव 1 स्पेस, देन 1, 7 अगेन लीव 1 स्पेस, ठीक है। अब देखिए 2, 3, अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है इससे हमको किसकी वैल्यूज मिलने वाली है, सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखिए, ये वैल्यूज किधर इंक्रीज हो रही है, ईस्टवर्ड इंक्रीज हो रही है वैल्यू, मीन्स इससे हमको ईस्टिंग की वैल्यूज मिलेंगी और इसकी वैल्यूज नॉर्थवर्ड यानी कि अब ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मीन्स इससे हमको नॉर्थिंग्स की वैल्यूज मिलेंगी। ये मत सोचिएगा कि अगर सपोज जो लाइन है वो ईस्टिंग की है मीन्स इससे ईस्टिंग की वैल्यू, नो, एक्चुअली में वैल्यूज इधर किसकी इंक्रीज होती है नॉर्थिंग्स की और इधर किसकी इंक्रीज होती है ईस्टिंग की। तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी हमको वो मिलेंगी ईस्टिंग की और यहाँ से मिलेंगी नॉर्थिंग्स की। अब ये सपोज कि ये नंबर 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, एंड सपोज इधर से भी अगर ये 4 को कोइंसाइड कर रहा है तो लिख देंगे 4, अगर वो 5 को करेगा तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से भी 5 को करेगा 5 लिख देंगे, इधर से अगर 6 को करेगा तो 6 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज हम एक और यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये बी है, अब इसके भी वर्टिकल ऐसे लाइन एक ड्रॉ करेंगे और इधर से एक हम, हाँ कई बार क्या होता है कि ये लाइन जो है बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये नंबर 6 भी लिख सकते हैं, नंबर 7 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों में से रॉन्ग कोई भी नहीं होगा, या ओब्लिक डाल के ऐसे ओब्लिक डाल के दोनों आंसर्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास ये बी है, बी इसका 6 फिगर क्या होगा, उससे पहले हमको 4 फिगर लिखना होगा। तो ऑब्वियसली 4 फिगर तो सेम ही होगा जो पहले वाले का था, 4 फिगर तो ठीक है 2, 3, 1, 7। अब ये किसको कोइंसाइड कर रहा था ईस्टिंग 8 को और इधर किसको कर रहा है 6 को, तो इसका क्या हो गया 2, 3, 8, 1, 7, 6। ओके, सो इस हिसाब से क्या ये जो हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है और ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है, ठीक है। तो इन जनरल अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रहता तो यू कैन आस्क मी, ओके, थ्रू कमेंट सेक्शन, ओके ओके। एंड आई होप कि जो भी मैंने ये 4 फिगर और 6 फिगर एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी अगर लगता है आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो अगेन
मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उससे मैं क्लियर कर सकता हूँ। अगेन मैं बता देता हूँ, जब भी आपको 4 फिगर लिखना है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को देखना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर। और जब 6 फिगर लिखना है तो जो भी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपका फीचर है, उस फीचर वाले बॉक्स के क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को 10-10 डिविजन्स करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 2-2 मिलीमीटर्स का एक एक हमारा गैप होगा। जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू जो हमारी वैल्यूज आएगी वो ईस्टिंग के लिए, और जो वर्टिकल लाइन के थ्रू आएगी वो आएगी नॉर्थिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगेन मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अपने मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू कुछ रियल एग्जांपल्स जो कि टोपो शीट की कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू मैं आपको नॉर्थिंग्स सॉरी जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू आपको कुछ 4 फिगर और 6 फिगर का एक एग्जाम्पल एक एक मैं टोपो शीट के जो फोटोग्राफ्स है उससे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी आपको ये सब कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमको मैप बनाने का मेन हमारा जो पर्पस क्या है, या जो भी मैप्स हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े साइज़ का जो है वो मतलब जो मैप्स वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम मैप्स को जो स्केल या फिर अर्थ को इतना बड़ा हम एज ए स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अर्थ को स्टडी करने के लिए हम मैप्स या फिर ग्लोब के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें ये जो है एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैप, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैप की, चाहे वो टाइटल हो, स्केल हो, डायरेक्शन हो, ग्रिड सिस्टम हो, या फिर साइन एंड सिंबल्स हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है सारा कुछ। तो इस पर्टिकुलर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जो है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मतलब 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस का कुछ एग्जांपल्स जो है एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं फिर। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं सब के सब ईस्टिंग्स होती हैं, और ये लेफ़्ट टू राइट यानी कि ईस्टवर्ड इंक्रीज़ करती हैं। और ये जो लाइंस हैं ये सब के सब नॉर्थिंग्स हैं जो कि बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ करती हैं। और ये हमारे पास एक टोपो शीट का जस्ट एक कह सकते हैं एग्जांपल है ये। तो इसमें नीचे की तरफ हम देखते हैं तो हमारे पास देखिए ये एक छोटा सा फिगर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन है कि एक हैबतपुर विलेज है और इसका हमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड आउट करना है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो विलेज है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर विलेज है, ठीक, तो इस विलेज का हमको क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ये जो हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो ये साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को ध्यान रखना है, यानी कि ये पर्टिकुलरली जो फीचर यानी कि जो विलेज है वो इस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस ग्रिड के अंदर है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके सबसे पहले हमको ईस्टिंग लिखनी होती है। तो यहाँ पे ईस्टिंग क्या है, ईस्टिंग जो है वो 4-3 है, ये देखिए इस जगह पे ये ईस्टिंग 4-3 है, और इसकी नॉर्थिंग क्या है 8-5 है, ठीक है। इसकी जो नॉर्थिंग है वो 8-5। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो 4-3-8-5। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है वो 4-3-8-5। और भी किसी अगर अब सपोज़ यहाँ पे इसके अंदर जो 336 ये जो लिखा है इसका, या फिर ये 119, इन सभी का जो है वो 4-3-8-5 ही 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होगा। और सपोज अगर मेरे को बेंचमार्क, BM मीन्स बेंचमार्क अगर मेरे को 224.6 का निकालना है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 426 का 224 का क्या है कि ये पर्टिकुलर साउथ वेस्ट कॉर्नर है इसका। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4-4, और क्योंकि इसका जो नॉर्थिंग है वो सेम है, नॉर्थिंग देखिए सेम लाइन है नॉर्थिंग, तो इस पर्टिकुलर जो ये है इसका भी जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आएगा 4-4-8-5, ओके। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे पास अगर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस की बात करेंगे, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो 6 फिगर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 फिगर के लिए हमारे पास हम ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है एज वेल एज जो वर्टिकल लाइन है, इनको हम क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं ये 10 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, 10 इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पे एक टेम्पल है, इस टेम्पल का मेरे को क्या करना है 6 फिगर निकालना है। तो 6 फिगर निकालने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसका 4 फिगर लिखते हैं। तो देखिए ये इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, और यहाँ पे देखिए 26 इस लाइन पे लिखा है, मतलब ये जो लाइन है ईस्टिंग इसकी वैल्यू 26 है, मतलब जो टेम्पल का 4 फिगर होगा 26 और 90। बट क्योंकि 6 फिगर के लिए हम लोग एक स्पेस छोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे 26, देन एक स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पे और फिर लिखेंगे 90।
अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली फीचर है ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो देखेंगे ऑलमोस्ट ये सेंटर में बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो 2 6 यहाँ 5 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। और इधर की तरफ अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये इसको कोइंसाइड कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं, मतलब ये 3 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है इसके अंदर, मतलब दोनों ही लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर देखिए 265902 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ये इसके दोनों के बीच में है, तो 2 और 3 दोनों में से कोई भी लिखेंगे चलेगा। देखिए 2 और 3 कैसे लिख सकते हैं कि सपोज आप 265 और 902 और ओब्लिक डाल के 265903, ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखेंगे वो गलत नहीं होगा। तो ये 6 फिगर्ड है। तो यही जस्ट मैं आपको इसीलिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको इस टाइप के ही मतलब जो टोपो शीट में डायग्राम्स आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो इस हिसाब से ही आपको मतलब करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्पॉट हाइट दिया हुआ है, स्पॉट हाइट 166, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम पहले क्या करने वाले हैं, जैसे इसको हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे करके 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे, फिर देखेंगे स्पॉट हाइट किसको मीट कर रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और इस टाइप से हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जैसे इसका 4 फिगर हम लिखना चाहें तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो इसका 4 फिगर क्या आएगा 2589, और इसके अकॉर्डिंग जब हम डिवीजन करेंगे स्केल से तो हमको पता लग जाएगा कि सपोज करते हैं कि ये 7 से मीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 257 मतलब देखिए ये बताया था मैंने कि ये जो पर्टिकुलर डिवीजन्स होंगे ये डिवीजन्स होंगे ईस्टिंग के लिए, और इधर अगर मैं डिवीजन करता हूँ इधर तो वो होंगे नॉर्थिंग्स के लिए। तो सपोज ये 4 को मीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 25 just a minute, let me explain again. Okay, it is 25, देन यहाँ आ जाएगा 7, देन 8 9, और सपोज कि वो 4 से मीट कर रहा है तो ये 4, इस टाइप से मैंने इसका निकाला है, ये स्पॉट हाइट है। तो ऐसे करके आप किसी का भी जनरली स्पॉट जो हमारे पास 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है वो एग्जैक्ट जो वैल्यूज मतलब एग्जैक्ट हमारे को जो लोकेशन है उसके लिए, ठीक। तो जो भी एग्जैक्ट लोकेशंस होती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको, यानी कि ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए, पिन पॉइंटिंग के लिए हम लोग 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको जो है जो भी मैंने ये इस पर्टिकुलर वीडियो में 4 फिगर एंड 6 फिगर एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, कुछ भी अगर आपको डाउट होगा, किसी भी टाइप का अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं अगेन चाहूँगा तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट होगा तो छोटा सा एक वीडियो बना के और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये मतलब बेनिफिशियल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।